بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، الافک اس کا لفظی معنی ہے الٹا کرنا۔ مراد ایسا بہتان ہے جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لگایا تھا۔ 2-3 مخلص مسلمان بھی سادہ دلی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرا ڈالتے۔ جس بیوی کے نام قرا نکلتا اسے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ جس کو بنو المستلق کہتے ہیں اس کے بارے میں قرا ڈالا جو میرے نام نکلا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودے میں سوار تھی اور جب اترتی تو ہودے سمیت اتاری جاتی۔ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ اظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے لگی اور تلاش کرنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے ہودہ اٹھا لیا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں ہودہ میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی، پر گوشت اور بھاری بھرکم نہ ہوتی تھی اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھی۔ لہذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو انہیں اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ ان دنوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک کمسن لڑکی تھی۔ خیر وہ ہودہ اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد ہار مل گیا اور میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا، مطلب کہ قافلہ جا چکا تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل السلمہ الذکوانی مقرر تھے۔ وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ کون سنا رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور انہی کی زبانی آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ بن ابن ابی سلول تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے شک سا پڑتا تھا، اور وہ بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہیں آئی۔ بس یہ تھا کہ آپ میرے پاس آتے تو سلام کہتے، پھر فرماتے کیا حال ہے،
और चले जाते। इससे मुझे शक पड़ता, मगर मुझे किसी बात की खबर नहीं थी। बीमारी से कुछ अफाका हुआ तो मैं कमज़ोर हो गई। अभी कमज़ोर ही थी कि मनासा की तरफ गई। मुस्ता की माँ, उसका नाम आतका था, मेरे साथ थी। हम लोग हर रात को वहाँ कज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। ये उस ज़माने की बात है जब हम अपने घरों के नज़दीक बैतुल खला नहीं बनाते थे, बल्कि अगले ज़माना के अरबों की तरह रफ़ा हाजत के लिए बाहर जाया करते थे, क्योंकि घरों के करीब बैतुल खला बनाने से इसकी बदबू हमें तकलीफ़ देती। खैर, मैं और मस्ता की माँ, जो अबू रहम बिन अबद मनाफ की बेटी थी, और इसकी माँ सखर बिन आमर की बेटी और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला थी, इसका बेटा मस्ता था। रफ़ा हाजत से फरागत के बाद हम दोनों घर को आ रही थी कि मस्ता की माँ का पाँव चादर में उलझकर फिसला तो वो कहने लगी, मुस्ता हलाक हो। मैंने इसे कहा, तुमने बहुत बुरी बात कही। क्या तुम उस शख्स को कोसती हो जो बदरी साहबी है, यानी जो बदर की जंग में शामिल था? वो कहने लगी, ए भोली लड़की, क्या तुमने वो नहीं सुना जो उसने कहा? मैंने कहा, उसने क्या कहा है? तब इसने तोहमत लगाने वालों की बातें मुझसे बयान की तो मेरी बीमारी में मज़ीद अजाफा हो गया। जब मैं घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और सलाम करके पूछा, अब कैसी हो? मैंने कहा, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं वालिदैन के पास चली जाऊं? मेरा इरादा उस वक्त ये था कि इनसे ख़बर की तहकीक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं अपने वालिदैन के पास आ गई तो मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं? उसने कहा, बेटी इतना रंज न करो। अल्लाह की कसम, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी मर्द के पास कोई खूबसूरत औरत होती है और वो उससे मोहब्बत करता है और इसकी शौकनें भी हों तो वो बहुत कुछ करती रहती हैं। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, लोगों ने इसका चर्चा भी कर दिया। चुनाचे मैं तो वो सारी रात रोती रही। सुबह हो गई मगर मेरे आंसू थमते ही न थे, ना आंखों में नींद का सुरमा तक आता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालब और हज़रत असामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, क्योंकि वही उतरने में देर हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपनी अहलिया से अलहदगी के बारे में मशवरा करना चाहते थे। असामा बिन ज़ैद ने तो आपको इसके मुताबिक मशवरा दिया जो वह जानते थे कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसी नापाक बातों से पाक है, और उसके मुताबिक कहा जो उनके दिल में आपके घर वालों की मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी अहलिया हैं और हम खैर के सिवा कुछ नहीं जानते। हज़रत अली ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी तो नहीं की, और औरतें इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, और अगर आप बरीरा से पूछें तो वो आपको ठीक ठीक बता देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी है कि आयशा के मुतल्लिक़ तुम्हें कुछ शक हो? बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, अल्लाह की कसम, जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने इसमें कोई बात नहीं देखी जिसे मैं इसका ऐब समझूं। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वह नौउमर लड़की है, घर वालों का गूंदा हुआ आटा रख कर सो जाती है और बकरी आकर उसे खा जाती है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए और उस दिन अब्दुल्ला बिन अबी के ख़िलाफ़ मदद मांगी। फरमाया, तर्जुमा पढ़ती हूँ इसका, मुसलमानों, इस आदमी के ख़िलाफ़ कौन मेरी हमायत करता है जिसकी तकलीफ़ मुझे मेरे घर वालों के मुतल्लिक़ पहुँची है? अल्लाह की कसम, मैंने अपने अहले खाना में भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा, और इन लोगों ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया है जिसमें खैर के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा, और वो मेरे घर कभी अकेला नहीं आया बल्कि मेरे साथ ही आता है। ये सुनकर साद बिन माज अंसारी, औस कबीले के सरदार थे, खड़े हुए और कहने लगे, मैं इसके मुकाबिल आपकी मदद करता हूँ। बहुत तकलीफ़ दी इस वाक़े ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत रुलाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया।
ये सुनकर साद बिन माज अंसारी रजी अल्लाह अन्हु औस कबीले के सरदार थे खड़े हुए और कहने लगे, मैं इसके मुकाबल आपकी मदद करता हूँ। अगर वो औस कबीले से है तो मैं उसकी गर्दन उड़ाता हूँ, और अगर हमारे भाइयों यानी खज़रज कबीले से है तो आप जो हुक्म करेंगे हम बजा लाएंगे। ये बात सुनकर साद बिन अबादा जो खज़रज कबीले के सरदार थे खड़े हुए। वो इससे पहले नेक आदमी थे, मगर कौमी हमीयत ने इन्हें भड़का दिया। उन्होंने साद बिन माज से कहा, अल्लाह की कसम तुमने झूठ कहा। अल्लाह की कसम ना तुम उसे कत्ल करोगे और ना ही कत्ल कर सकते हो। इतने में असैयद बिन हज़ीर रजी अल्लाह अन्हु जो साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हा के चचा के बेटे थे खड़े हुए और उन्होंने साद बिन अबादा से कहा, तुम झूठे हो, तुम झूठ कह रहे हो। अल्लाह की कसम हम उसे ज़रूर कत्ल करेंगे, क्योंकि तुम मुनाफिक हो, मुनाफिकों की तरफदारी करते हो, उनकी तरफ से झगड़ते हो। इस पर औस और खज़रज दोनों कबीलों के लोग उठ खड़े हुए और करीब था कि आपस में लड़ पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मिंबर ही पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें समझाया और ठंडा किया, यहाँ तक कि वो खामोश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हो गए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं वो सारा दिन रोती रही, ना मेरे आंसू थमते थे, ना आंखों में नींद का सुरमा तक पड़ता था। वालिद ने मुझे वापस घर जाने का हुक्म दिया और मैं घर चली गई। मेरे वालिदैन सुबह मेरे पास आ गए। मैं 2 रात और 1 दिन से मुसलसल रो रही थी। इस अरसा में मुझे ना नींद आई थी और ना आंसू थमते थे। वालिदैन को गुमान होता था कि रो रो कर मेरा कलेजा फट जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे वालिदैन मेरे पास बैठे थे और मैं रो रही थी कि एक इंसारी औरत ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने इजाज़त दे दी तो वो भी मेरे साथ बैठकर रोने लगी। हम इस हाल में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपने सलाम कहा और बैठ गए। इससे पहले जब से मुझ पर तोहमत लगी थी आप मेरे पास नहीं बैठे थे। आप 1 महीना इंतज़ार करते रहे मगर वही नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर खुतबा पढ़ा, फिर फरमाया, अम्मा बाद यानी खुतबे के बाद। तर्जुमा पढ़ने लगी हूँ। आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में ये बात पहुंची है, अगर तू बेगुनाह है तो अल्लाह ताला तुझे ज़रूर बरी कर देगा, और अगर तू किसी गुनाह से आलूदा हुई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो और तौबा कर लो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात ख़त्म की तो मेरे आंसू सूख गए, हत्ता कि मुझे इनका एक कतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने वालिद से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है इसका जवाब दें। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूँ। यानी हज़रत अबू बकर सदीक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ। आखिर में खुद ही जवाब देने लगी। मैं 9 उम्र लड़की थी, कुरान मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैंने कहा, इन्नी वल्लाही, अल्लाह की कसम मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने ये बात सुनी है, हत्ता कि आपके दिल में जम गई है और आपने इसे सच्चा समझ लिया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ तो तुम मुझे इसमें सच्चा नहीं समझोगे, और अगर मैं किसी बात का एतराफ़ कर लूँ जबकि अल्लाह ताला जानता है कि मैं इससे बरी हूँ तो आप मुझे सच्चा समझेंगे। अल्लाह की कसम मैं अपनी और तुम्हारी मिसाल ऐसे ही समझती हूँ जैसे यूसुफ के बाप ने कहा था, इन्नमा आशकु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपने गम और दुख की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। सो मेरा काम अच्छा है कि मैं सब्र करूँ, और अल्लाह ही है जिससे इस पर मदद मांगी जाती है जो तुम बयान करते हो। फिर मैंने करवट बदल ली और बिस्तर पर लेट गई। मैं उस वक़्त जानती थी कि मैं बेगुनाह हूँ और अल्लाह ताला ज़रूर मेरी बेगुनाही की वजह से मुझे बरी कर देगा, लेकिन अल्लाह की कसम
مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرنے والا ہے جس کی تلاوت کی جائے گی، اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کمتر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جایا کرے گی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں خواب دیکھیں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے پاک قرار دے دے گا، تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نہ تھے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔